السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش میں ہوں گے، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ ناول کا نام ہے روح عزیز اور اس کی رائٹر کا نام ہے عائشہ ملک۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ اس کے روم کے دروازے کو نوک کرتی وہ اجازت مانگتے ہوئے بولی تھی تو دھنک جو ہاسپٹل سے سیدھا اپنے روم میں آ کر لیٹی تھی، مہروش کی آواز سنتے وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی تھی۔ جی جی، آپ ادھر کیوں کھڑی ہیں؟ اندر آئیں، ہیڈ بورڈ سے ٹیک لگاتے وہ نقاہت زدہ سی آواز کے ساتھ بولی تھی۔ چہرے پر ابھی بھی زردیاں گھلی ہوئی تھیں۔ مہروش مسکراتی ہوئی عنایا کو اپنی بازوؤں میں اٹھائے اس کی جانب بڑھی۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ مجھے ماما نے بتایا ابھی آپ کی طبیعت کے بارے میں۔ اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھتے وہ عنایا کو بھی اپنی گود میں لیتے ہوئے بولی تھی تو دھنک ہلکا سا مسکراتی ہوئی ہاں میں سر ہلا گی۔ جی اب ٹھیک ہوں، عنایا کی جانب دیکھتے ہوئے وہ بولی تھی، جو اس کے روم میں ادھر ادھر اپنے سر کو گھمائے بٹر بٹر دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے دھنک کے لبوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ دوڑی تھی۔ آپ کی یہ ڈول بہت پیاری ہے، کیا میں اسے پکڑ لوں؟ عنایا کے سرخ پھولے ہوئے گالوں کی طرف دیکھتی اب مہروش کو اجازت طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ مہروش نے مسکراتے ہوئے عنایا کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے اس کی جانب بڑھایا تھا۔ دھنک نے نروس پڑتے پہلی بار اتنے چھوٹے بچے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا۔ اس کو ڈول اس کا چاچو بلاتا ہے، تم بھی بلا سکتی ہو۔ مہروش نے اس کی جانب گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بےتکی سی بات کی تھی، جبکہ دھنک جو عنایا کے پھولے ہوئے گالوں کو نرمی سے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے چھو رہی تھی، مہروش کی بات پر چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ منہ اس کا ایسے بنا تھا جیسے کڑوا بادام آ گیا ہو۔ نہیں، میں اسے پری بلاؤں؟ اس کے دائیں گال پر لب رکھتے ہوئے وہ معصومیت کے ساتھ بولی تھی کہ مہروش نے ہنستے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا، جبکہ عنایا اپنی آنکھوں کو بڑی بڑی کیے دھنک کی جانب دیکھ رہی تھی کہ دھنک پھر سے جھکتی ہوئی اسے لیے دوسرے گال پر لب رکھ گئی۔ قسم سے یہ ہمیں اتنی پیاری لگ رہی ہے کہ ہمارا دل کر رہا ہے ہم اسے اپنے پاس رکھ لیں۔ وہ اس کے دونوں گالوں پر پیار کرنے کے بعد اب ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی کہ مہروش بھی اس کی بات پر مسکرائے۔ اچھا اب آپ ریسٹ کریں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتائیں، میں دے دیتی ہوں۔ مہروش نے اس کے ابھی بھی زرد پڑتے ہوئے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر ابھی بھی بخار کے اثرات نظر آ رہے تھے۔ نہیں، اب میں کچھ دیر آرام ہی کروں گی، اس کے بعد فریش ہو کر میں نیچے آؤں گی، دھنک نے کہا تو مہروش سمجھنے والے انداز میں ہاں میں سر ہلایا تھا اور اس کے ہاتھ سے عنایا کو پکڑنا چاہا، جب دھنک جلدی سے اس کے گال پر لب رکھتے عنایا کو مہروش کی جانب پکڑا گئی۔ مہروش اس کی حرکت پر مسکرائی تھی۔ آپ لیٹ جائیں، میں لائٹس آف کر کے چلی جاؤں گی، اس نے دھنک کو دیکھتے ہوئے کہا تو دھنک ہاں میں سر ہلاتی ہوئی اپنے بیڈ پر چت لیٹی تھی کہ مہروش اس کے روم کی لائٹ آف کرتے ہوئے روم سے باہر نکل گئی۔ السلام علیکم۔ دونوں نفوس اس وقت ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ یلو کلر کی سمپل سی شرٹ کیپری پہنے اور سر حجاب کیے وہاں پر داخل ہوئی تو اس کے ساتھ ایک اور خوبصورت سے خوبرو نوجوان مرد کو دیکھتی وہ نروس سے بڑی تھی اور جھجکتے ہوئے سلام کیا تو اس کے ساتھ ساتھ عریشہ نے بھی آواز کی جانب نظر اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا تو اپنے سامنے ہی فرال مصطفیٰ خان کو دیکھتے پا کر عریشہ اپنی جگہ پر ساکت رہ گیا تھا۔ فرال مصطفیٰ خان کو اس نے شاید پہلی دفعہ حجاب میں دیکھا تھا اور اس کا حجاب میں چمکتا چہرہ دیکھتے عریشہ کو دنیا بھولتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ سر پر حجاب کی اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ عریشہ کو اس کے سامنے ہر چیز کی خوبصورتی پھیکی پڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس حجاب کے حالے میں چھپے ہوئے چہرے کی خوبصورتی اسے آج بڑھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کی ہیزل گرین آنکھیں آج الگ ہی انداز میں اس کے اوپر جچ رہی تھیں کہ عریشہ اسے دیکھتے ہوئے بے اختیار ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا، جبکہ شامر شاہ اپنی ہی جگہ پر کھڑا ہوا تھا۔ چہرے پر سنجیدگی کی بجائے نرم تاثرات چھائے تھے اور اپنے سامنے کھڑی ہوئی لڑکی کی جانب بڑھتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ فرال مصطفیٰ خان کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ حیرانگی سے اپنے سامنے کھڑے ہوئے وہ اس خوبرو نوجوان مرد کو دیکھ رہی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہیں آپ؟ میں شامر شاہ ہوں، عریشہ کا بڑا بھائی، بیٹھیں پلیز۔ اس نے اس کے نروس پڑے چہرے کی جانب دیکھتے اپنا تعارف کرواتے ہوئے اسے بیٹھنے کا کہا تھا تو فرال مصطفیٰ خان جھجکتی ہوئی وہیں پر پڑی ہوئی چیئر پر بیٹھ گئی تھی تو عریشہ جو اسے پھٹی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا تھا، شامر شاہ کی ایک گھوری پر
हड़बड़ाते हुए वो फरहाल मुस्तफ़ा खान के दाएं जानिब मौजूद चेयर पर बैठा था, जबकि उसके सामने ही शामिर शाह अपनी पूरी वजाहत के साथ बैठा था। कैसी हैं आप और गुड़िया कैसी है? शामिर शाह ने दोबारा से सवाल दोहराते साथ फातिमा के मुतालिक भी पूछा था कि फरहाल ने हल्का सा सर हाँ में हिलाते हुए परेशानी से अरेश शाह की जानिब देखा था, जो खामोशी से उसकी जानिब देख रहा था। उसे परेशानी से जब अपनी जानिब तकते पाकर अरेश शाह ने उसे आंखों से ही रिलैक्स रहने का इशारा किया तो वह गहरी सांस भरती हुई दोबारा से शामिर शाह की जानिब मतवज्जो हुई। आप कैसे हैं सर? वो अब शामिर शाह की जानिब मतवज्जो होते हुए नरम अंदाज में बोली थी, तो शामिर शाह ने हल्का सा सर हाँ में हिलाया था। जाओ हमारे लिए चाय लेकर आओ। उसने उसने इनडायरेक्टली अरेश को वहां से जाने का ऑर्डर दिया था कि आंखें घुमाता हुआ शामिर शाह को घूरते वहां से उठा था, जिसके बाद वो फरहाल की जानिब मतवज्जा हुआ था। अरेश शाह की बात पर क्या सोचा है आपने? वो बिना लगी लिपटी के सीधे मुद्दे पर आया था कि फरहाल ने पहली दफ़ा नर्वस पड़ते अपने हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाया था। देखें, फैसला लेने से पहले आप एक दफ़ा ये ज़रूर सोचिएगा कि ये वो आपकी और आपकी बहन की प्रोटेक्शन के लिए कर रहा है। फरहाल ने अभी अपने लब वाह करने चाहे थे जब शामिर मजीद बोला था कि वो लब भींचती रह गई। लेकिन मैं ऐसे कैसे? मतलब आपकी फैमिली वाले क्या सोचेंगे? वो इंतहाई नर्वस थी। आप मेरी बहन बनकर जाएंगी, मैं फैमिली जाएंगी, मेरी फैमिली कुछ नहीं सोचेगी और कुछ ही दिनों की बात है। फिर जब सब ठीक हो गया तो आप सब वापस आ जाइएगा, लेकिन इस वक्त आपका मंजर आम से गायब होना ज़रूरी है। शामिल साहब संजीदगी से बोला था। आप मुझे अपना भाई समझे और मुझ पर भरोसा रखें और अपनी और गुड़िया की जाकर पैकिंग करें, हम यहाँ से निकलेंगे। वो संजीदगी से बोला था कि फरहाल ने हल्का मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया था। जब वहां पर अरेशा आया था, मैंने ऑर्डर कर दिया है, वो अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोला था और सवालिया नजरों से शामिर शाह की जानिब देखा था। ठीक है, कल हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, शामिर शाह ने संजीदगी से कहा था कि अरेशा के अंदर सुकून की लहर दौड़ी थी। शाह ने ऐसा क्या कह दिया जो आपने इसकी बात मान ली? मैंने तो बहुत इसरार किया था मेरी बात पर, तो आपने मना कर दिया था। वह अब उसकी जानिब झुकते हुए उसे मसनूई गुस्से से देखते हुए बोला था कि फरहाल ने अपने आईब्रो रेज किया था, वो मेरा अदा है, इसलिए मैं उसकी बात मान गई हूँ। तुम मेरे क्या लगते हो जो मैं तुम्हारी बात मानती? उसने उसी के अंदाज में शाने उचकाते हुए कहा था कि अरेश शाह दांत पीसता रह गया था और गुस्से से शामिल शाह की जानिब देखा था, जो इन दोनों से बेनियाज अब अपने फ़ोन में मसरूफ था, जो 5 मिनट में उसका भाई बनकर उसे अपना यकीन दिला गया था। और अरेश शाह जो उसके पीछे कब से ख्वार हो रहा था, उसे इस पर यकीन ही नहीं था। कुछ ही देर बाद उनका ऑर्डर आया तो वो खाना खाते फरहाल को घर ड्रॉप करते अपने फार्म हाउस की जानिब बढ़ गए थे। उसकी आंख अपने वजूद पर किसी की नज़रों की तपिश से खुली थी कि उसने अपनी ब्राउन आंखें खोलकर सामने देखा, जहां पर मेहराब अपने सीने पर हाथ बांधे उसका चेहरा अपनी आंखों में बसाए गहरी नज़रों से उसके चेहरे की जानिब देख रहा था। ये धनक उसे इस वक्त अपने रूम में खड़े देखकर हड़बड़ाते हुए अपने बेड से एक झटके से उठी थी, जिसके ब्राउन बाल आबशार की तरह उसके चेहरे पर आए थे, जिसकी परवाह किए बगैर वो दुपट्टे के लिए इधर उधर देखने लगी थी जो उसके साथ ही बेड पर पड़ा हुआ था, जिसे वह जल्दी से पकड़ते अपने ऊपर फैला गई थी और इंतहाई गुस्से से मेहराब की जानिब देखा था, जो अभी तक अपने सीने पर हाथ बांधे उसके ही चेहरे पर अपनी नजरें टिकाए खड़ा था। उसे उठते देख वो चलता हुआ उसकी जाने बढ़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस वक्त मेरे रूम में आने की? तुम्हें शर्म नहीं आती? इस वक्त किसी लड़की के रूम में आते हुए? वो गुस्से से तेज आवाज में बोलती हुई अभी अपने बेड से खड़ी होती जब मेहराब जल्दी से बोला, लेटी रहें, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं बस आपकी तबीयत का पूछने आया था। उसे बेड से उठते फौरन उसे उसकी जानिब बढ़ते हुए बोला था और उसके हाथ को थामते उसे वहीं पर बिठाया था। जाओ यहाँ से, रात के 10 बजे तो मेरी तबीयत का पूछने आए हो, सुबह भी पूछ सकते थे। लड़खड़ाते हुए वो बोली थी, घबराहट के मारे गला खुश्क सा हो रहा था। अपने आप को बहुत कंट्रोल किया था, लेकिन फिर भी रहा नहीं गया तो आपको देखने चला आया। उसकी आंखों में देखते वो टूटे हुए लहजे में बोला था, क्या आपको मुझ पर तरस नहीं आता? प्लीज़, कितनी बेदर्द और जालिम हैं आप, जिसने मेरे दिल को चकनाचूर किया। और देखें, आपको तकलीफ में देखकर ये दिल आज भी किस कदर तेजी से धड़क रहा है। वो उसके पास ही बैठते हुए उसका हाथ अपने सीने पर रख गया था कि धनक एक लम्हे के लिए अपनी जगह से हिल नहीं पाई थी। आंखें अपनी जगह पर साकित हुई थी और अगले ही लम्हे उसने अपना हाथ उसी तेजी से खींचा था। चेहरे पर गुस्से की शिद्दत से सुर्ख पड़ा था।
क्या चाहते हो तुम? अपने चहेते भाई की सिफारिश तो करवा ली है, अब और क्या चाहते हो तुम? मनवा तो ली है अपनी बात, और क्या करूं मैं? लेकिन अभी तुम मेरे रूम से निकलो बाहर, और आगे से जितना हो सके उतना मुझे अपनी ये शक्ल दिखाने से परहेज करना। अब निकलो। तेज तेज सांस लेती वो सख्त आवाज के साथ बोली थी, जबकि मेहराब तो उसके पहले अल्फाजों पर ही उलझ कर रह गया था। चेहरे पर हैरानगी के तासुरात थे। क्या मतलब है? लाला जान ने क्या कहा है आपसे? वो जल्दी से बोला था। धनक की बातों से उसे बहुत कुछ अंदाजा हो गया था, जबकि धनक ने अपने आंसू हलक में उतारते उसकी जानिब देखा था। अपने लाला से ही पूछ लेना, और प्लीज अब मेरे रूम से निकल जाओ, और आगे से मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। इस बार उसके अल्फाजों से मेहराब शाह को तो तब ही चढ़ गई थी कि वो उसके हाथ को अपने फौलादी हाथ में जकड़ते हुए गुस्से से सुर्ख होती आंखों के साथ उसकी जानिब देखते हुए बोला था, मेरी बात आप ध्यान से सुन लें। आज नहीं तो कल आपको मुझे कबूल करना ही होगा, और उसके बाद सारी उम्र ही ये शक्ल देखने को मिलेगी। और इतना ही बोलें जितना आप बाद में सह भी सकें। जितना आपने मुझे और मेरे दिल को सताया है ना, शादी के बाद मुझसे नरमी की उम्मीद तो हरगिज़ मत रखिएगा, समझिए आप? गुस्से से सुर्ख होती आंखों के साथ वो एक एक लफ्ज़ चबाता हुआ उसका हाथ छोड़ते हुए उल्टे कदम उसके कमरे से बाहर निकला था। जब धनक तो उसका ये रवैया ही देखती रह गई थी। आज उसे वो मेहराब सा नहीं लगा था। आंखों से आंसू बहने लगे थे कि वो गुस्से से औंधे मुंह बेड पर लेटती अपना चेहरा तकिए में छुपा गई थी। अस्सलाम वालेकुम लाला, आप जहाँ? शामिर शाह को अपनी यूनी के अपार्टमेंट के बाहरी गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़े देखकर राफे भागता हुआ उसके जाने बढ़ा था, और गर्म जोशी से उसके गले लगते वो खुशगवार हैरत के साथ बोला था कि शामिर शाह ने हल्का सा मुस्कुराते हुए उसकी पीठ थपथपाई थी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, बस तुम तो हमें भूल ही गए हो, इसलिए मुझे खुद ही तुमसे मिलना पड़ा। और वैसे भी एक दो दफ़ा तुम्हारे प्रिंसिपल की तरफ से भी फ़ोन आया है। उसे बगलगीर होने के बाद वो उसे अपने सामने करता हुआ राफे बलाल शाह की आंखों में देखता हुआ संजीदगी से तंजिया अंदाज से बोला था कि राफे शाह उसकी बात पर हड़बड़ा सा गया था, और ज़बरदस्ती सा मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाया था। नहीं लाला, ऐसी बात नहीं है। मैं इस वीकेंड पर आने ही वाला था घर। और लाला यार, प्रिंसिपल ने क्या कहा है आपसे? क्या नहीं, लेकिन मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, मेरी इस सब में कोई गलती नहीं थी। राफे बलाल शाह ने पहले से ही अपनी वाली साइड क्लियर करनी चाहिए थी, लेकिन शामिर शाह की अगली बात सुनते उसे अपनी जल्दबाजी का एहसास हुआ था, तो लब दांतों में दबा के रह गया। लेकिन मुझे तो प्रिंसिपल ने यहाँ किसी इवेंट के बारे में बताने के लिए फ़ोन किया था। तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो? शामिर शाह ने उसे गहरी तफ्तीशी नज़रों से देखते हुए कहा था कि राफे शाह का दिल किया अपना माथा पीट डाले, और शामिर की बात पर हड़बड़ाते हुए फ़ौरन से रफ़ी में सर हिलाया था। नहीं नहीं, कुछ किसी चीज़ के बारे में नहीं, मैंने तो वैसे ही कहा कि कहीं फजूल में मेरी शिकायत ही न लगा दी हो प्रिंसिपल ने, इसलिए बस। वो अपना सर खुजाते हुए हल्का सा मुस्कुराहट लबों पर सजाते हुए बोल रहा था कि शामिर शाह उसे पुरसोच नज़रों से देखता हुआ हाँ में सर हिला गया। वैसे तो मैं यहाँ की हवा काफ़ी रास आ गई है, मुझे लग रहा है। शामिर शाह की एक्सरे करती हुई नज़रों से इस बार तो राफे झुंझुला कर ही रह गया था, और रही से ही कसर उसके सवालों ने पूरी कर दी थी। हो, तो हवा तो रास आएगी ही ना लाला, यहाँ पर जनाब की मोहतरमा भी तो रहती है। और ये बात उनकी तरफ बढ़ते हुए उमर ने मुस्कुराते लहजे में की थी कि राफे करंट खाकर पलटा था और खूनख्वार नज़रों से उमर की जानिब देखा था, जो आगे बढ़ते हुए शामिर शाह के बगलगीर हो रहा था कि शामिर शाह ने मुस्कुराते हुए उसकी भी पीठ थपथपाई थी। अस्सलाम वालेकुम लाला, कैसे हैं आप? राफे की खूनख्वार घुरियों को इग्नोर करते हुए शामिर शाह से मुखातिब हुआ था। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सुनाओ? शामिर शाह की भारी सी आवाज़ गूंजी थी, और उमर ने मुस्कुराते हुए अल्हम्दुलिल्लाह कहा था। क्या कर रहे थे तुम? क्या कह रहे थे तुम? शामिर शाह ने कुछ देर पहले उसकी की जाने वाली बात को दोबारा से पकड़ा था, और एक एक नज़र इन दोनों के चेहरों की जानिब देखा था। शामिर शाह की बात सुनते ही उमर ने एक नज़र उठाते हुए राफे की जानिब देखा, जो उसे ऐसे देख रहा था जैसे कह रहा हो कि अगर तुमने एक और ज़रा सी भी बकवास की तो अगले ही मिनट तुम यहाँ से सीधा ऊपर पहुँचोगे। उमर की नज़रों में छुपी तहरीर को पढ़ते अपनी मुस्कुराहट जब्त कर गया, और दोबारा से शामिर शाह की जानिब मतवज्जह हुआ था। कुछ नहीं लाला, मैं तो आपको आपकी शादी की मुबारकबाद दे रहा हूँ। आपने मुझे अपनी शादी पर बुलाया ही नहीं। बहुत ज़्यादती की है वैसे आपने। उमर शामिर शाह की जानिब देखता हुआ इस बार मासूमियत से उसे शिकवा की नज़रों से देखते हुए बोला था कि शामिर शाह की आंखों के सामने फ़ौरन से महरोश का चेहरा लहराया था, तो होठों पर खुद ब खुद ही मुस्कुराहट आ रही थी।
बेटा शुक्र करो अपने भाइयों की लाज रखकर उन्हें बुला लिया शादी पर, वरना जैसे लाला के हालात है मुझे तो हम भाइयों को बुलाना भी गनीमत लग रहा है। राफे ने उमर को देखते हुए कहा था कि वो मुस्कुराहट जब्त करके रह गया, जबकि शामिर शाह उसे एक ज़बरदस्त घूरी से नवाज गया। बात घुमाना तो उमर राफे से कोई सीखे, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, समझे तुम, और अपनी खैर मनाओ, क्योंकि बातों से तुम मुझे बहुत मशकूक से लग रहे हो। वो भी अपने नाम का एक ही था, संजीदगी से कहते उसने राफे के चेहरे के रंग उड़ाए थे। वो जो सोच रहा था कि शामिर को इस बात से हटा चुका है कि शामिर की एक्सरे करती आंखों से कौन बच सकता था भला। लाला यार ऐसे ना करें, अगर कभी किसी लड़की को लेकर भागा तो पक्का प्रॉमिस शादी के लिए गवाह आपको ही बनाऊंगा। शरारत से वो शामिर को आंख विंग करते हुए बोला था कि उमर का कहका गूंजा था। शामिर ने दोनों को घुरा, तुम ज़रा ये काम करके तो देखो, फिर मेरी तरफ से दिया हुआ गिफ्ट तुम सारी ज़िंदगी नहीं भूलोगे। उसकी संजीदगी से राफे की जानिब देखते हुए कहा, जब राफे चीखा था। उमर अपनी मुस्कुराहट दबाए इन दोनों की जाने भी देख रहा था। लाला यार ये ज्यादती है आपने भी तो की है, और वैसे भी बस मेरी दुआ भी कबूल होने वाली है। झिंझिलाकर कहते कहते आखिर में उसका लहजा शरारतन हुआ था कि शामिर शाह ने आईब्रो रेस करते उस दुआ को जानना चाहा था जो उसकी कबूल होने वाली थी। बाइक राइडिंग लाला यार याद नहीं आपको मैंने क्या कहा था। मुस्कुराहट होंठों पर ही दबाए वो बोला था कि शामिर ने गुस्से से उसे घूरा था। अभी वो उसे कोई जवाब देता जब शामिर शाह का फ़ोन रिंग हुआ था। अपनी आंखों के सामने फ़ोन पर जगमगाते नंबर को देखते वो यस करता फ़ोन कान को लगा गया, और फिर कुछ ही देर बाद वो राफी और उमर से मिलता अपनी गाड़ी में बैठता वहां से निकलता चला गया। उसके पीछे ही गार्ड की गाड़ियां भी निकली थी। दीदा जान हम लोग कहाँ जा रहे हैं, आप बता क्यों नहीं रही कुछ। दुलाज फातिमा ने तकरीबन ये 5वीं दफ़ा पूछा था, और फरार ने अपने बैग में सब कुछ रखते जिप बंद करते गहरी सांस ली थी और मुड़कर फातिमा की जानिब देखा था जो रूहानी शक्ल बनाए उसकी जानिब भी देख रही थी। मेरी जान कुछ दिनों के लिए हम कश्मीर जा रहे हैं, तुम यूँ समझो कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, ओके ना। अब मज़ीद कोई सवाल नहीं पूछना और जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ, कुछ ही देर बाद हम निकलने वाले हैं। फरहाल उसके करीब आकर फातिमा के गाल को थपथपाते हुए आहिस्ता से नरम अंदाज में बोली थी, जबकि फातिमा अभी तक उलझी हुई नज़रों से फराल की जानिब ही देख रही थी। लेकिन हम वहाँ पर कहाँ पर जाएंगे, फराल की जानिब देखते हुए वो मासूमियत से बोली थी। वहाँ पर है मेरे कुछ जानने वाले, बल्कि यूँ कह लो वहाँ पर हमारा भाई है, तो बस अब आप जाएं और तैयार हो आएं और वो हमें लेने आता ही होगा। बस अब बाकी के सवाल बाद में। उसे बताने के बाद फातिमा का फिर से खुलता हुआ मुंह देखकर फराल जल्दी से बोली थी कि फातिमा ने मुंह बसूरते हुए अपने मुंह को बंद किया था, और हाँ ये फ़ोन मुझे पकड़ाओ, हमने वहाँ पर ये सिम यूज़ नहीं करनी। उसने फातिमा के हाथ से उसका फ़ोन पकड़ा था और फातिमा का दिल तेज़ी से धड़का था। आंखों के सामने राफे का चेहरा लहराया था, तो क्या वो उससे भी राब्ता नहीं कर सकेगी। दिल में कहीं चुभन सी हुई थी, लेकिन इस वक्त वो इन सब से अनजान थी, तो वही फराल को फ़ोन पकड़ाती वो अपने रूम की जानिब बढ़ गई। ड्राइवर के साथ वो फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था, जबकि बैक सीट पर फराल और दुलाज फातिमा बैठी हुई थी। उनके आगे पीछे ही गार्ड की गाड़ियां रवां दवां थीं। शामिर शाह जिस काम के लिए शहर गया था वो अभी भी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन फराल और दुलाज का यहाँ से जाना ज़रूरी था कि वो अपने काम को एक दफ़ा वहीं पर छोड़ता उन्हें लिए गांव की जानिब रवाना हुआ था। उनकी गाड़ियां सड़क पर रवां दवां थीं जब अचानक से आगे बढ़ती हुई गार्ड की गाड़ी अपनी जगह पर रुकी थी कि पीछे ही सब गाड़ियों की चिड़चिड़ाने के साथ साथ ब्रेक की आवाज़ भी हवा में गूंजी थी। फराल फातिमा का सर एकदम से गाड़ी रुकने पर आगे की जानिब सीटों पर लगा था कि उनकी चीखें गूंजी थी। वहीं पर शामिर शाह के चेहरे का रंग बदला था, आंखों में एकदम से सुर्ख डोरे नमूदार हुए थे और गर्दन और हाथों की रगें तनकर उभरी थी। क्या हुआ है, इंतहाई गुस्से से वो ड्राइवर की जानिब देखते हुए बोला था कि ड्राइवर का खून खुश्क हुआ था। सर आगे किसी ने हमारी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी रोकी है। उसे एक नज़र शामिर शाह के गुस्से की वजह से सुर्ख होते चेहरे की जानिब देखते हुए डरते हुए बोला था। क्या है? शामिर शाह ने एक नज़र वो पीछे डरी सहमी हुई फातिमा और फराल की जानिब देखा था और फिर एक झटके से अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर कदम रखा। उसके साथ ही सब गार्ड्स अपनी अपनी गाड़ियों से बाहर निकले थे। साईं हमें माफ़ कर दें, हमें नहीं पता था गाड़ी में आप हैं, माफ़ी चाहते हैं साईं। गार्ड्स आगे बढ़ते इस गाड़ी की जानिब गए थे और इनमें से मौजूद 5 आदमियों को बाहर निकाला और उन्हें अपने घेरे में लिया था, जिसमें से एक आदमी शामिर शाह को देखते हुए फौरन से उसके कदमों में गिरता हुआ गिड़गिड़ाते लहजे में बोला था कि शामिर ने खूनख्वार नज़रों से उसकी जानिब देखा था। कौन हो तुम और किसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है? शामिर शाह ने उसकी जानिब देखते हुए बर्फ के माने सर्द अंदाज में बोला था। जब वो शख्स एकदम से ज़मीन से उठता अपनी पॉकेट से पिस्टल निकालता निशाना बांध गया था। ये सब इतनी अचानक हुआ था कि कोई समझ ही ना पाया था। ठाक की आवाज़ इस खुली फिजा में गूंजी थी कि एक दफ़ा हर जानिब खामोशी छा गई थी। शामिर शाह ने अपने बाएं कंधे की जानिब देखा जिस पर गोली छू कर गुजरी थी, लेकिन खून फव्वारे की सूरत में वहां से निकल रहा था।
अपने कंधे की जानिब देखते हुए शामिर शाह ने नजर उठाते उस आदमी की जानिब देखा तो शामिर की आंखों में देखते ही उसके हाथों से पिस्टल गिरा था। चेहरा लट्ठे की माने सफेद पड़ा था और अगले ही लम्हे शामिर शाह अपनी पिस्टल निकालते सारी की सारी गोलियां सामने खड़े मौजूद वजूद के सारी की सारी गोलियां सामने खड़े मौजूद के जिस्म में आर पार कर दी थी। और फिर इस खामोशी में कितने ही गोलियों की आवाज़ गूंजी थी और वो सब आदमी खून में लथपथ वहीं ज़मीन पर ढह गए थे। फरहाल और फातिमा जिस गाड़ी में बैठी थी इन्हें बाहर से ना किसी चीज़ की आवाज़ आ रही थी और ना ही दिखाई दे रहा था। फातिमा तो वैसे ही अनजान लोगों को देखते हुए सहमी हुई बैठी थी। अब तो फरहाल के साथ चिपक गई थी। वो भी अपनी जगह परेशान थी। 5 मिनट में ये सारी जगह साफ होनी चाहिए और ऐसा लगे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। अपने गार्ड को हुक्म देते हुए अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा तो इनमें से कुछ गार्ड फौरन से हाँ में सर हिलाते उस जगह को साफ करने लगे थे, जबकि बाकी अपनी अपनी गाड़ियों के आगे बढ़ गए थे। शमीर शाह वापस जाता हुआ फ्रंट सीट पर बैठा था। गुड़िया डरने की बात नहीं थी, बस कुछ लोग रास्ता भूल गए थे, उन्हें वही बताया है। अब हम सीधा घर चलेंगे। आप लोगों के रिलैक्स होकर बैठें। शामिर शाह ने उनकी जानिब देखते हुए नरमी से कहा था कि वो जो दोनों खौफजदा सी थी गहरी सांस भरते हुए थोड़ा पुरसकून हुई थी, जबकि शामिर शाह ने अपने कंधे से निकलते हुए खून को अपनी ब्लैक कलर की अजरक से छुपाया था। एक दफ़ा फिर से सारी गाड़ियां अपनी मंजिल की जाने बढ़ी थी। भाभी जी, अगर आप फ्री हैं तो एक कॉफ़ी का कप मेरे लिए भी बना दें। महरोज जो किचन में खड़ी अपने लिए चाय का कप निकाल रही थी, जब अचानक पीछे से आती हुई आवाज़ पर वो अपनी जगह से उछली थी। उसके हाथ से गर्मा गर्म चाय छलकती हुई बाएं हाथ पर गिरी थी, जिसके बाद महरोज के लबों से सिसकी बरामद हुई, जिसे वह दबाती हुई फौरन से पीछे पलटी थी। लेकिन अपने सामने किसी अनजान से शख्स को खड़े देखकर वो एकदम से अपनी जगह सहमी थी। आंखों में एकदम से खौफ उभरा था और गिरे आंखों में खौफ लिए सामने खड़े शख्स की जानिब सहमी हुई नजरों से देख रही थी। ओ, आपका हाथ चल गया है बुरी तरह से। वो शख्स जो महरोज के चेहरे की जानिब भी देख रहा था, जब नजरें चेहरे से हटती हुई उसके हाथ पर गई थी तो वो एकदम से उसकी जानिब बढ़ा था, जिस पर महरोज फौरन से होश में आती हुई साइड पर हुई। नहीं नहीं, ठीक हूँ। आप कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उसने अपनी आवाज़ को नॉर्मल रखने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपने डर और खौफ पर काबू नहीं रख पाई थी कि आवाज़ ना चाहते हुए भी कपकपा कर रह गई थी। महरोज की बात पर मुकाबिल हल्का सा मुस्कुराया और महरोज को उसकी मुस्कुराहट से खौफ महसूस हुआ। चेहरे का रंग लट्ठे की माने सफ़ेद पड़ा। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं इस घर का ही फ़र्द हूँ, लेकिन खैर तारुफ तो बाद में भी होता ही रहेगा। अभी आप मुझे अपना हाथ दिखाएं, कॉफ़ी रेड हो गया है। वही दफ़ा फिर से अपने कदम उसकी जानिब बढ़ा गया, जब महरोज नफ़ी में सारे हिलाते हुए फौरन से पीछे हटी थी। नहीं, आप अपनी जगह पर ही खड़े रहें। इस बार वो लड़खड़ाते हुए थोड़ा सख्ती से बोली थी कि मुकाबिल के कदम अपनी जगह पर थमे थे। चेहरे पर हैरानगी छाई थी और अगले ही लम्हे वो फिर से मुस्कुरा उठा था। वैसे मानना पड़ेगा, शामिर शाह की चॉइस तो बहुत कमाल की है। कुछ तो बात है, आपने तभी तो एक बच्ची की माँ से शादी कर ली है, वरना इसे कौन सा किसी लड़कियों की कमी थी। उसके लहजे में इस बार तो कुछ ऐसा था कि महरोज के तन बदन में आग लगी थी। आंखों से शरारे फूटे थे कि वो भीपरी शेरनी की मानिंद उसकी जानिब बढ़ी थी। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बकवास करने की? क्या तुम भूल गए हो इस गांव के सरदार की बीवी के सामने खड़े होकर उसकी ही बीवी के बारे में ऐसी बात कर रहे हो? एक जोरदार थप्पड़ के साथ उसके गुर्राने की आवाज़ भी किचन में गूंजी थी कि अलमान अपने चेहरे पर हाथ रखे आंखों में गैज़ो गज़ब की सुर्खी लिए महरोज की जानिब देख रहा था, जो गुस्से की वजह से सुर्ख होते चेहरे के साथ उस पर चिल्ला रही थी। इस थप्पड़ का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा डियर भाभी साहिबा। उसकी वही जली हुई कलाई को अपने हाथ में पकड़ते हुए इस पर दबाव बढ़ाते हुए इंतहाई सर्द अंदाज में बोला था कि महरोज की आंखें दर्द की वजह से उबलकर बाहर आने को हुई थी। आंखों में मोटे मोटे आंसू दर आए थे। तकलीफ की वजह से चेहरा सुर्ख पड़ा था। अलमान लाला, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अभी महरोज की मज़ाहमत करती जब अचानक से एक नस्वानी आवाज़ इन दोनों की समातों से टकराई थी कि अलमान ने फ़ौरन से पलटकर दरवाजे की सिमत देखा, जहाँ पर धनक आंखों में गुस्से की सुर्खी लिए स्पाट चेहरे के साथ संजीदगी से बोली थी कि अलमान एक लम्हे के लिए बुखला कर रह गया था और झटके से महरोज के हाथ को छोड़ते हुए पीछे हटा था, जबकि महरोज के हाथ सीने में अटका हुआ सांस धनक को वहां देखते बहाल हुआ था। धनक चलती हुई महरोज की जानिब बढ़ी थी और एक नज़र उसकी आंखों में मौजूद आंसुओं को देखते वो दोबारा से स्पाट नज़रों के साथ अलमान को देखने लगी। आपका कोई काम था यहाँ पर? या महरोज के साथ अलमान लाला? उसके लहजे में कुछ तो ऐसा था कि अलमान को अपना गला खुश्क पड़ता हुआ महसूस हुआ। हाँ, वो मेरी भाभी को अपने लिए कॉफ़ी बनाने का कह रहा था। गले को तर करते गले को तर करते ही वो बमुश्किल ही बोल पाया था। महरोज नामहसूस अंदाज में धनक के पीछे हो गई थी और अपने गले में अटके हुए आंसुओं को अपने अंदर ही उतारा था।
अलमान लाला, शायद आप भूल रहे हैं कि ये किसकी बीवी है, जिसे आप काफ़ी बनाने का ऑर्डर दे रहे थे। तो हम आपको याद दिलाते चलें, ये यहाँ के सरदार और उस हवेली के बड़े चश्म चिराग की बीवी है, यानी कि यहाँ की सरदारनी है। तो हम आपको नसीहत करते चलें, आगे से इन्हें तो कम अज़ कम ऑर्डर मत दीजिएगा। यहाँ और भी बहुत सी मुलाजमाएं हैं, आप उन्हें कह सकते हैं। वो एक एक लफ्ज़ को चबाते हुए आंखों में संजीदगी लिए सर्द अंदाज में बोली थी कि उसके लहजे में छाई संजीदगी और सर्दपन को महसूस करते एक लम्हे के लिए तो महरोश भी हैरान रह गई थी, जबकि अलमान मसनूई सा हल्का सा मुस्कुरा कर रह गया था। आपको कॉफ़ी मिल जाएगी, आप यहाँ से जा सकते हैं। अपनी ब्राउन आंखें उसके चेहरे पर गाड़ती हुई वो बोली तो अलमान बिना कुछ के वहां से निकलता चला गया कि धनक गहरी सांस भरते हुए महरोश की जानिब पलटी थी, जो फक हुए चेहरे के साथ धनक की जानिब देख रही थी। आपको किसी से डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ के सरदार की बीवी हैं, तो डरना घबराना आपको बिल्कुल ज़ेब नहीं देता। वो महरोश के चेहरे की जानिब देखते हुए हल्की आवाज़ में बोली थी। आप किसी को ये बताएंगी तो नहीं? डर और खौफ अभी भी इसकी आंखों में मौजूद था, तो इस बार धनक हल्का सा मुस्कुरा दी। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको ये बात अपने हस्बैंड को बतानी चाहिए। धनक ने नरमी से कहा था, जब महरोश फौरन से बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, उन्हें कुछ नहीं बताना, प्लीज़। वो डरते हुए फौरन से बोली थी, ओके रिलैक्स, कुछ नहीं बताएंगे। आपकी चाय ठंडी हो गई है, मैं गर्म करके लाती हूँ। आपको बड़ी मामा बुला रही थी, शायद अनाया रो रही थी। आप जाएं। महरोश को रिलैक्स करती वो चाय की जानिब मतवज्जा होते हुए महरोश को अपने यहाँ आने की वजह भी बता गई थी कि महरोश फौरन से हाँ में सर हिलाती उल्टे कदम ही किचन से वापस बाहर की जाने बढ़ी थी। अस्सलाम वालेकुम। वो जो किचन से निकलकर लॉन्च में दाखिल हो रही थी, जब लॉन्च के खुले दरवाजे से भारी गंभीर आवाज़ गूंजी थी कि उसके बढ़ते हुए कदम अपनी जगह पर थमे थे। मुकाबल की आवाज़ सुनते उसके दिल की धड़कन बढ़ी थी। फौरन से रुख पलटते हुए लॉन्च के दाखिली दरवाजे पर खड़े हुए शख्स को देखने लगी थी। जब उसके साथ किसी दो अजनबी लड़कियों को देखते उसके चेहरे पर हैरानगी दर आई थी। शामिर शाह की निगाहें भी सबसे पहले उस पर उठी थी और फिर पलटना भूल गई थी। अपने इर्द गिर्द का होश भुलाए वो यकटकी उसे देखे जा रहा था, जैसे अपनी आंखों की दो दिन की तशनगी मिटा रहा हो। अभी वो दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे जब अचानक से वहां खिलखिलाहटें सी गूंजी थीं कि शामिर शाह ने नजर महरोज से हटाकर लॉन्च के सोफे पर समरीन बेगम की गोद में लेटी हुई अनाया की जानिब देखा था, जो शायद शामिर शाह की आवाज़ पहचानते अपनी गर्दन को घुमाकर शामिर शाह की जानिब ही देखते हुए हाथ पांव मारते मुंह से अजीबोगरीब आवाज़ें निकालती हुई शामिर शाह को अपनी जानिब मतवज्जा कर रही थी। और शामिर शाह पर छाया सकता टूटा था। चेहरे पर उसे खिलखिलाते देखकर जानलेवा मुस्कुराहट दर आई थी कि वो तेज कदमों के साथ चलता हुआ उसकी जानिब बढ़ा। महरोश हैरानगी से आंखें फाड़े ये मंदिर देख रही थी। वहीं पर समरीन बेगम के लबों पर मुस्कुराहट थी। फराल और फातिमा वहीं पर खड़ी न समझी से सबको देख रही थी। फराल ने शामिर शाह जैसे संजीदा से शख्स को मुस्कुराते पहली दफ़ा देखा था। फातिमा तो मिली ही उससे आई थी। बाबा की जान, बाबा की प्रिंसेस। शामिर शाह ने अनाया को बाजू और कमर के दरमियान से पकड़ते हुए उसे ऊपर की जानिब उठाया था कि इसकी खिलखिलाहटों से पूरी हवेली गूंज उठी थी। जब दादी के साथ साथ दुरेश शाह और बलाल शाह ने भी लॉन्च में कदम रखा, तो इस कदर बच्ची की खिलखिलाहटें सुनकर उनके चेहरे पर भी खूबसूरत मुस्कुराहट दौड़ी थी। आगे को चलते हुए मंदिर पर दादी ने बेसाख्ता माशाल्लाह कहा था। बस करो शाह, इतना ना हंसाओ, कभी कभी माँ बाप की भी बच्चों को नजर लग जाती है। अनाया को अजीबो गरीब आवाज़ों के साथ खिलखिलाते देखकर समरीन बेगम अपनी जगह से खड़ी होती हुई शामिर शाह के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली थी कि शामिर शाह अनाया को वापस अपने बाजू में थामते हुए उसके चेहरे पर झुकते हुए उसे चटाचट चूमने लगा। लेकिन अनाया की खिलखिलाहटें थी जो कम होने का नाम नहीं ले रही थी। शामिर शाह के लम्स पर वो और ज़्यादा खिलखिलाने लगी थी, जबकि शामिर शाह जिसके कंधे पर थोड़ी देर पहले ही गोली छूकर गुजरी थी, वो बिना किसी दर्द की परवाह किए अपनी बेटी की खिलखिलाहटों पर सदके वारी जा रहा था। बस करें बाबा की जान, कहीं आपको वाकई ही मेरी नज़र न लग जाए। उसके माथे पर लब रखते अब वो समरीन बेगम की जानिब मतवज्जा हुआ था, जो उसे मुस्कुराते देखकर आप उसके सर पर हाथ रख रही थी। शाह, दादी की आवाज़ लाउंज में गूंजी थी कि शामिर शाह ने पलटते हुए उन्हें देखा और उनकी नज़रों के ताकों में देखते हुए अपने सर पर हाथ मार के रह गया, जहां दादी फराल और मुफत फातिमा की जानिब सवालिया नज़रों से देख रहे थे, जो एक साइड पर खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम दादी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान और छोटे पापा। अनाया को अपने बाजू में ही थामे वो चलता हुआ अब इनके जानिब बढ़ा था और इनसे बगल गिर होकर उसने दादी के सामने अपना सर झुकाया था, जिस पर दादी ने भी अपने पोते के सर पर हाथ रखते हुए उसे अपने सीने से लगाया था, जो इनका गरूर था कि शामिर शाह मुस्कुराया।
अब ये बच्चियां कौन है शामिर पुत्र? उनके पूछने का अंदाज आता था कि शामिर शाह ने अपनी मुस्कुराहट जब्त की थी, जबकि इस वाक़े के बाद शायद उन्होंने आज पहली दफ़ा उन्हें शामिर पुत्र कहकर बुलाया था कि शामिर शाह पर पुरसकून सा हो गया था। दादी, ये शामिर शाह की बहनें बनकर कुछ दिन हवेली रहने आई हैं। आपको कोई एतराज़ है क्या? जो दादी की तरफ देखते हुए पूछ रहा था। जबकि फरहाल का दिल धड़का था, उसने दादी की जानिब देखा जो शामिर शाह की जानिब भी मतवज्जो थे। जब पूछने की बारी थी तब तो पूछा नहीं, अब हमें क्या एतराज़ हो सकता है भला? दादी ने शामिर शाह को मसनूई घूरी से नवाजते उसके बाजुओं में मौजूद अनाया के सिर पर हाथ रखा था, और ये वो पहली दफ़ा कर रहे थे कि वहाँ मौजूद हर फर्द हैरान रह गया था। महरोज की आंखों में नमी उतरी थी, जबकि शामिर शाह ने हैरानगी से दादी की जानिब देखा था। बच्ची के सदके के लिए 5 बकरों का इंतज़ाम करो। बाप ने नज़र लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जोरेश शाह को देखते हुए वो बोले थे, जिसने फौरन से बाप के हुक्म की तामीर की थी और वहां से बाहर निकला था। बहू बेगम, बच्चियों को उनके रूम दिखा दो, थक गई होंगी, कुछ देर आराम कर लें, फिर रात के खाने पर मुलाकात होगी। वो फराल और फातिमा के सरों पर हाथ रखते हुए समरीन बेगम की जानिब देखते हुए बोले थे, जिन्होंने फौरन से हाँ में सर हिलाया था। फराल और फातिमा के लिए और रूम की जानिब बढ़ी थी। जाओ, तुम भी फ्रेश हो आओ शाह, बच्ची को मुझे पकड़ा दो, मैं इसका सदके के बकरों पर हाथ लगवा दूं। शामिर शाह के हाथों से अनाया को लेते वो शामिर शाह को वहीं पर हक्का बक्का छोड़ते बलाज शाह को लिए बाहर की जानिब बढ़ गए थे। शामिर ने हल्का सा मुस्कुराते हुए सर झटका था और गर्दन घुमाकर महरोज की जानिब देखा जो वहीं पर खड़ी थी। वो चलता हुआ उसकी जानिब बढ़ा। कैसी हैं आप? अपने दाएं जानिब के हिसार में लिए वो उसके सर पर लब रखता हुआ बोला था कि महरोज का दिल दहल कर रह गया था लॉन्च में उसकी इस तरह की हरकत पर। कुछ देर पहले क्या हुआ था वो सब कुछ फकत एक शख्स के आने पर भूल गई थी। इधर उधर देखते उसने कसमसाते हुए शामिर शाह के हिसार में मुज़ाहमत की थी। छोड़ें, कोई आ जाएगा। नर्वस हो पड़ती वो अटकते हुए बोली थी। आई एम सॉरी। धनक, जो बाहर इतना ज्यादा शोर सुनकर किचन से निकली थी, सामने शामिर और महरोज को देखते उसने फौरन से अपनी आंखों पर हाथ रखते चेहरे का रुख दूसरी जानिब कर लिया था। आवाज में वाज़ेह शर्मिंदगी थी कि शामिर शाह रन खाकर महरोज से दूर हटा था। वहीं पर महरोज के जिस्म का सारा खून सिमट कर उसके चेहरे पर धर आया था। मैं चलती हूँ। वो बिना इन दोनों पर एक भी निगाह डाले तेजी से भागती हुई सीढ़ियां चढ़ गई थी, जबकि महरोज अब शामिर शाह को गुस्से से सुर पड़ते चेहरे के साथ घूर रही थी। चाय बनाकर रूम में लेकर आए आप, और जल्दी आइएगा। बिना उसकी घुरियों की परवाह किए वो कहता हुआ सीढ़ियां चढ़ता अपने रूम के जाने बढ़ गया, जबकि महरोज पीछे अपने सीने पर हाथ रखते अपनी धड़कनों को ही संभालती रह गई। शाह, उसने चाय की ट्रे हाथ में पकड़े रूम में कदम रखा तो शामिर शाह जो ड्रेसिंग के सामने खड़ा अपनी बैंडेज चेंज कर रहा था, जो उसने रास्ते में गाड़ी रोकते किसी क्लिनिक से करवाई थी और अब अनाया को उठाने की वजह से खून रिसने पर खराब हो गई थी, जब महरोज की कपकपाती आवाज उसकी समातों से टकराई थी। तेज हमेशा गहरी सांस भर के रह गया और उसकी जानिब देखा जो आंखों में बेयकीनी लिए पक पड़ते चेहरे के साथ उसके बाएं कंधे को देख रही थी, जहां से खून अब भी हल्का हल्का बह रहा था। ये क्या हुआ है? होश की दुनिया में आते वो तेज तेज कदम उठाती हुई शामिर शाह की जाने बढ़ी थी और आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए वो उसके कंधे पर ही नजरें जमाए बोली, रोशी जान, कुछ नहीं हुआ, आप इधर बैठे और इधर देखें मेरी तरफ। शामिर शाह उसे इस तरह से जज्बाती होते देख उसे वहीं बेड पर बैठाता उसका बाजू थाम गया था। जब महरोज के लबों से हल्की सी सिसकी बरामद हुई कि शामिर चौंका और नजरें बेख्तियार उसके बाजू पर गई। ये क्या हुआ है? ये जला है बाजू आपका? ध्यान किधर था आपका? इतना ज्यादा जल गया है? कुछ लगाया है आपने यहाँ पर या नहीं? एक साथ कई सवालात पूछते हुए अपने दर्द को भुलाए उसका बाजू पकड़े वहां पर अपना हल्का सा अंगूठा मूव किए फूंक मार रहा था, जहां गर्मा गर्म चाय गिरने की वजह से अच्छी खासी जिल्द रेड हो गई थी। हाय, मुझे ये कैसे हुआ है और आप किचन में क्या दिखाएं मुझे ये कैसे हुआ है और आप किचन में क्या कर रही थी जितना ज़्यादा जला चुकी हैं अपना बाजू? आंखों में फिक्रमंदी के साथ साथ मुकाबिल की लापरवाही पर गुस्सा भी डर आया था कि वो सख्त अंदाज में बोला, वो चाय गिरी थी, हल्की थी, ज़्यादा नहीं जला, आपके ज़्यादा चोट आई है और आप मुझे बताएं ये क्या हुआ है? अरे भाड़ में गई मेरी चोट, ये अब चाय बनाते वक्त जला है या पहले? और यार, आप किचन में गई ही क्यों? मैं ही पागल था जो आपको चाय बनाने के लिए किचन में भेज दिया। चेहरे पर फिक्रमंदी के तासुरात वाज़े नज़र आ रहे थे। इतनी तो उसे अपनी गोली लगने पर दर्द नहीं हुई होगी जितनी इस वक्त मुकाबिल की दर्द का अंदाज़ा लगाते हुए उसे हो रही थी।
نہیں ابھی نہیں جلا، پہلے جلا تھا، اور میں پہلے بھی کچن کے کام کرتی رہتی ہوں. آپ ایسے ریئیکٹ کر رہے ہیں جیسے میں پہلی دفعہ گئی ہوں، اور اب مجھے اپنا کندھا دکھائیں، خون بہہ رہا ہے ابھی بھی آپ کے. کہتے کہتے آخر میں وہ بیچارگی لیے بولی تھی کہ شامل شاہ چلتا ہوا ڈریسنگ روم میں گیا تھا اور کچھ ہی دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کریم تھی. شاہ پہلے آپ اپنی ڈریسنگ کر لیں یا میں کر دیتی ہوں، وہ اس کے کندھے کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، لیکن شامل شاہ نے اسے انتہائی سرد انداز میں دیکھا کہ وہ لب دباتی سر جھکائے بیٹھ گئی تھی. شمیر نے اپنی انگلی کے پورے پر کریم لگاتے اس کے جلے ہوئے حصے پر لگائی تھی. اگر اس طرح سے ہی ہاتھ جلاتی رہی تو آپ تو مجھ پر ترک کر کے آپ کچن میں نہ جایا کریں. اس کے ہاتھ پر کریم لگانے کے بعد وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا تھا، اور آگے بڑھتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے کہ مہروش نے اپنی آنکھیں بند کرتے اس کے لمس کو اپنی روح تک اتارا تھا. اتنی تکلیف تو مجھے اپنی اس چوٹ کی وجہ سے نہیں ہوئی جتنی آپ مجھے اپنی تکلیف کی وجہ سے دے چکی ہیں. بس کریں پلیز. وہ اس چیز کے اندر دیوانگی بھری باتیں نہیں سن سکتی تھی کہ نم آنکھوں کے ساتھ دوسرے ہاتھ کو اس کے لبوں پر رکھتے اسے خاموش کروایا. جب شامیر نے اس کے وہی ہاتھ کی ہتھیلی کو لبوں سے چوما کہ مہروش کی پلکیں لرزی. وہ فوراً سے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر سے ہٹا گئی. میری محبت دیوانگی بھری باتیں اب سے برداشت نہیں ہو رہی. ابھی تو آپ نے میری محبت سہی بھی ہے، سہنی بھی ہے. اس کے چہرے کی جانب دیکھتا وہ معنی خیزی سے بولتا مہروش کو کپ کپانے پر مجبور کر گیا تھا. ابھی اب یہاں سے ہلیں گی بھی نہیں. میں یہ بینڈیج چینج کر کے آتا ہوں، لیکن آپ یہیں پر بیٹھی رہیں گی. اس نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا تھا اور خود واش روم کی جانب بڑھا تھا. جانتا تھا اس کے سامنے وہ اپنی بینڈیج ہرگز نہیں چینج کرنے والا تھا. اف اف یہ لڑکی مجھے پاگل کر دے گی. اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ انتہائی غصے سے بولا تھا. آج پھر وہ محترمہ یونی نہیں آئی تھی اور اسے آج ایک دفعہ پھر سے یونی میں نہ دیکھ کر رافع کا دماغ گھوم گیا تھا. اپنی پاکٹ سے فون نکالتے اس نے نمبر ڈائل کرتے فون کان کو لگایا، لیکن آگے سے بند جاتے نمبر کو دیکھ کر رافع کے چہرے کا رنگ بدلا تھا. دوبارہ سے نمبر ڈائل کرتے اس نے فون کان کو لگایا، لیکن مسلسل آگے سے بند جاتے نمبر کو دیکھتے رافع کا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا. انتہائی غصے کی حالت میں آتے ہوئے اس نے اپنا فون زمین پر دے مارا تھا جب عمر اس کی جانب بڑھا. واٹ ہیپن ڈوڈ؟ اتنا غصہ کس بات پر آ رہا ہے؟ اور یہ فون توڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھ غریب کو دیکھ کر میرا بھلا ہی کر دیتا. اس کے سرخ ہوتے چہرے کی جانب دیکھتے وہ تھوڑا پریشان بھی ہوا تھا، لیکن لہجے کو حتی المکان شرارتن بنا کر وہ بولا تھا. جب رافع نے اپنے غصے سے سرخ ہوتی نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا کہ عمر بھی ایک منٹ میں سنجیدہ ہوا تھا. کیا ہوا ہے؟ وہ سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتے بولا. کچھ تو وہ سمجھ بھی چکا تھا، لیکن رافع کا اتنا سخت غصہ اسے سمجھ نہیں آیا تھا. تم جانتے ہو کیا ہوا ہے؟ اس کی جانب دیکھتے وہ بے تاثر سے انداز میں بولا تھا. تو یار فون کر لیتے، کوئی پرابلم ہوئی ہوگی تبھی تو گڑیا نے چھٹی، ورنہ وہ بیچاری تمہیں کیوں فضول کا تڑپاتی. عمر نے اسے مشورہ دیا تو رافع نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا تھا جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ پھر مجھے یہ فون توڑنے کی کیا ضرورت پڑی تھی. اچھا تو پریشان نہ ہو، میں ٹرائی کرتا ہوں. اس نے اپنا فون نکالتے ہوئے دلاج فاطمہ کا نمبر ملایا تھا، لیکن آگے سے فون بند فون اس کا منہ چڑھا رہا تھا. اس نے بھی پریشانی سے ماتھے کو مسلا تھا. تمہیں اس کے گھر کا ایڈریس پتہ ہے تو وہاں چل کے دیکھ لیں گے. یار تم ٹینشن نہ لو. اس نے رافع کی پریشانی اور غصے کی وجہ سے سرخ ہوتے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا تھا. یار بس کر، شکل دیکھ اپنی ایسی بنا لی ہے جیسے پتہ نہیں خدا نہ خواستہ کیا ہو گیا ہے. اس نے رافع کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ رافع نے گہری سانس بھرتے ہوئے بالوں پر ہاتھ پھیرا تھا اور عمر کی جانب دیکھا تھا. تمہیں کسی چیز کا غم لگا ہے کہ اتنی سڑی ہوئی شکل بنا کر کھڑے ہو؟ اس نے عمر کے سنجیدہ چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو اسے دیکھ کر خود بھی سنجیدہ ہو گیا تھا. اور اس کی بات پر اس نے آنکھوں میں شرارت لیے اس کی جانب دیکھا تھا. کیا اس بات کا غم کافی نہیں ہے کہ تم اب کسی اور کے ہوتے جا رہے ہو؟ انداز ڈرامٹک سا تھا. رافع نے اس کی ایکٹنگ پر لب دانتوں تلے دبائے اسے دیکھا. سوری یار، اب میں اویلیبل نہیں ہوں، تم کسی اور پر ٹرائی کرو. بظاہر سنجیدگی سے وہ بولا تھا، لیکن آنکھوں میں واضح شرارت تھی. عمر نے اداس سی شکل بنائی. اوہ سچ، میں تو یہ بھول ہی گیا تھا کہ لڑکیاں تو تمہیں بھائی کے علاوہ کچھ سمجھتی ہی نہیں. اسے آج موقع ملا تھا عمر کو تنگ کرنے کا، جسے اس نے قطعاً ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا. عمر نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا. تو بھائی تم بھی شکر کرو کہ میری بیچاری بہن اور تمہاری محترمہ تمہیں مل گئی، ورنہ جیسے تمہاری کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنے والی حرکت تھی، مجھے تو لگتا تھا ہمیشہ کنوارا ہی رہنا تھا تم نے. وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا، اور رافع کو تنگ کرنا تو ویسے بھی اس کی فیوریٹ ہابی بن گئی تھی. رافع نے اس کی بات پر آنکھیں گھمائی. مجھے لگتا ہے عمر شاہ کو آج اپنی عزت افزائی کی شدت سے ضرورت محسوس ہو رہی ہے. تو کیا خیال ہے آپ کا مسٹر عمر؟
एक एक लफ्ज़ को चबाते हुए वो बोला था कि उमर ने हाथ उठाए थे। मुझे ऐसी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, इसलिए अब मैं चलता हूँ और तुम अपने बच्चों के नाम सोचो। अपना बैग कंधे पर लटकाता वो होंठों पर मुस्कुराहट सजाए भागने के अंदाज से वहाँ से निकला था। पीछे राफिद की फुर्ती देखकर सर झटक कर रह गया था। अस्सलाम वालेकुम दाजी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? वो रूम का दरवाज़ा नॉक करता हुआ अंदर आने की इजाज़त मांग रहा था। दाजी जो अपने बेड पर बैठे हाथ में पकड़ी किताब का रसाला कर रहे थे, नजर उठाकर सामने दीवार की सिमत देखा जहां पर ब्लैक कलर की शलवार कमीज पहने उसके ऊपर स्किन कलर की अजरक अपने गिर्द लपेटे शामिर शाह अपनी पूरी वजाहत के साथ खड़ा था। उसे देखते हुए दादी ने अपनी किताब बंद करते सारे टेबल पर रखी और आंखों से चश्मा भी हटाकर किताब के ऊपर रखते सीधा होकर बैठा था। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ शामिर पुत्र, सब खैरियत तो है ना? हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुलाते दादी ने नरमी से कहा था तो शामिर शाह चलता हुआ उनकी जानिब बढ़ा और उनके पास ही बेड पर बैठा। जब दादी ने उसके कंधे पर हाथ रखते उसे थपकी दी थी। जी दादी, सब खैरियत है, बस मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। तमहीद बांधते नरमी से दादी की जानिब देखते हुए बोला। जब दादी ने संजीदगी से उसका चेहरा देखा। क्या बात करनी है शामिर पुत्र? शामिर के चेहरे को बगौर देखते हुए बोले थे। दादी, मुझे दैनक बलाज शाह के रिश्ते के मुतालिक बात करनी है। एक लम्हे के लिए कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई थी। दादी खामोश नज़रों से उसकी जानिब देख रहे थे, जैसे उसके चेहरे से कुछ जानना चाह रहे हों, और इस बात की कोई ख़ास वजह। और ये बात वो अच्छे से जानते थे कि शामिर बिना वजह के बात नहीं करता, लेकिन फिर भी पूछा। दादी, क्या इतनी वजह काफ़ी नहीं कि मैंने उसे किसी को देने का वादा कर लिया है और शामिर शाह अपना वादा कभी नहीं तोड़ता? वो इस कदर संजीदगी लेकिन नरम लहजे में बोला था कि दादी ने चौंकते हुए उसे देखा था। शामिर शाह ने दादी के दोनों हाथों को अपने हाथ में पकड़ रखा था। मैं जानता हूँ तुमने जिसे भी हमारी पोती के लिए मुंतखब किया है वो हमारे मुंतखब से बेहतर नहीं हो सकता। वो टूटे हुए लहजे में शिकवे से शामिर शाह की जानिब देखते हुए बोले थे कि शामिर शाह ने जब्त से आंखें बंद करके खोली थी। दादी, आपको अंदाज़ा है कि मैं अब शादीशुदा और एक बच्ची का बाप भी हूँ, तो ये बात आप अपने जहन से अब निकाल दें, और जिसका इंतखाब मैंने किया है वो बेहतर से बेहतरीन है। शामिर शाह उनके हाथों को अपने हाथों में थामे दादी की जानिब देखते हुए बोले। जब दादी ने गहरी सांस हवा के सपुर्द की। कौन है वो शख्स जिसका इंतखाब तुमने हमारी इकलौती पोती के लिए किया है? मेहराब ज़ुरेर शाह। दादी के हाथ मेहराब के हाथों से दादी के हाथ शामिर के हाथों से छूटे थे। बेयकीन नज़रों से उसने शामिर की जानिब देखा था, जबकि शामिर शाह ने हैरानगी से दादी की जानिब देख रहे थे। तुम जानते भी हो शाह, तुम क्या बात कर रहे हो? तुम अपने भाई के लिए उस लड़की का इंतखाब कर रहे हो जो तुम्हारे दादी प्लीज़। दादी ने अभी अपनी बात मुकम्मल भी ना की थी जब शामिर शाह झंझलाते हुए बोला था। अगर कभी मेहराब को पता चल गया तो क्या करोगे तुम? अगर कभी उसे पता चल गया कि उसकी जिस लड़की से शादी हुई है वो उसके ही भाई को पसंद करती थी, फिर क्या होगा? शामिर शाह, बताओ मुझे। दादी ने गोयत के सर पर इस कमरे की छत गिराई थी। शामिर की आंखें जब्त से सुर्ख पड़ी। उसने हैरानगी से दादी की जानिब देखा। जानता हूँ मैं इस बात को बहुत पहले से, बल्कि ये समझ लो कि ये बात मैंने ही इसे कही थी। शामिर उसे मिलेगा तब से वो पागल लड़की तुम्हारे सपने देखने लगी थी, लेकिन अब ये सब तुम मुझे समझ नहीं आ रहा। दादी संजीदगी से बोले थे और शामिर ने आंखें बंद करके जब्त से खोली थी और गहरी सांस हवा के सुपुर्द की थी। मेहराब उसके लिए एक बेहतरीन हम सफ़र साबित होगा जो उसकी झोली खुशियों से भर देगा। आप सब बातों को सोचकर बस ये सोचें कि आपका पोता मेहराब शाह आपकी इकलौती पोती को दीवानों की तरह चाहता है कि अगर वो उसे ना मिली तो आप अपना पोता खो देंगे। दादी ने दहल कर उसकी जानिब देखा, जो अपने लफ्ज़ों से उसका दिल दहला गया था, और धनक न मानी। वो मान गई है, बस आप लोग को तारीख रखकर शादी की तैयारियां करें। शामिर ने कहा तो दादी ने उसे गुस्से से घूरा। जब सब कुछ खुद ही पहले से कर लिया था तो हमें भी तारीख रखकर शादी पर ही बुला लेते। नहीं, ये आपका हक है, आप उसे खुद खूब निभाएं। बज़ाहिर वो संजीदगी से बोला था, लेकिन उसकी बात पर दादी ने उसे मसनूई घूरी से ज़रूर नवाजा था। ठीक है, सुबह नाश्ते की टेबल पर बात करूंगा, दादी ने कहा तो शामिर शाह के कंधों से मानो बोझ सा हट गया था। शुक्रिया दादी, अब आप रेस्ट करें, मैं चलता हूँ, शामिर शाह कहता वहां से निकलता चला गया। पीछे दादी गहरी सोच में चले गए थे। शामिर शाह रूम में दाखिल हुआ तो उसे एक 440 वोल्ट का धचका लगा था। आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। हैरत से वह नजरें बेड से हटाकर सामने सोफे पर बैठी महरोश की तरफ देखा, जो खुद बेड की जानिब फटी फटी आंखों से देख रही थी। शामिर शाह ने दरवाज़ा झटके से बंद किया कि महरोश ने उसकी जानिब देखा और जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई। शाह ये देखें, अनाया खुद। वो एकदम से चहकती हुई शामिर की जानिब तेजी से कदम बढ़ाती हुई बोली थी। आवाज़ में खुशी के साथ साथ नमी सी भी घुल
جل رہی تھی۔ پرنسس بابا کی جان، اس نے حیرت سے بیڈ کی جانب قدم بڑھائے تھے جہاں عنایا بیڈ کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے دونوں اطراف کشن پڑے تھے اور اس کے سامنے ٹوائز بکھرے پڑے تھے، جبکہ ایک ٹوائے اس کے ہاتھ میں بھی تھا۔ شمیر شاہ کی آواز کو پہچانتے عنایا نے ہلکی سی اپنی گردن اٹھائی اور وہ ایک دم سے پیچھے بیڈ پر گرتی جب شمیر تیر کی تیزی سے اس کی جانب بڑھا تھا اور اس کا سر پیچھے سے اپنے ہاتھ میں تھامے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ آج عنایا پرنسس پہلی دفعہ خود سے بیٹھی تھی اور یہ موومنٹ ان دونوں نے ہی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ مہروز تو شمیر کا ہی انتظار کر رہی تھی کہ وہ بھی اپنی پرنسس کو بیٹھے ہوئے دیکھے، اور وہ اسی ٹائم روم میں داخل بھی ہو گیا تھا اور سامنے عنایا کو بیٹھے ہوئے بھی دیکھ لیا تھا، جو صرف 2 منٹ ہی بیٹھی تھی اور دوبارہ سے بیڈ پر گرتی جب شمیر شاہ نے اسے جلدی سے پکڑا تھا۔ او پرنسس بابا کی جان، لو یو بابا کی جان۔ پرنسس اب ماشاءاللہ سے بیٹھنے لگی ہے۔ اب کچھ ہی دنوں بعد پرنسس مجھے بابا جان کہتی ہوئی بھاگتی بھی نظر آئے گی۔ وہ کچھ زیادہ ایکسائٹڈ ہو گیا تھا کہ آگے 1 سال کا نقشہ کھینچ گیا تھا، جس پر مہروش نے تیکھی آنکھ کرتے اسے گھورا، البتہ کہا کچھ نہیں۔ آئی لو یو پرنسس، لو یو سو مچ۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے اس کے دونوں گالوں پر لب رکھتے وہ اب اپنی محبت جتا رہا تھا۔ مہروش نے اس کی جانب دیکھا جب شمیر نے بھی نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظریں ایک لمحے کے لیے ٹکرائی تھی۔ روشی جان، آپ ہرگز ہماری بیٹی سے جیلس مت ہوئیے گا کہ میں اسے ہی لو یو بول رہا ہوں۔ وہ کیا ہے نا، میں آپ کو اپنی محبت کا عملاً ثبوت بھی دینا چاہتا ہوں، اس لیے آپ ادھر زیادہ قریب آئیں۔ مہروش کو اپنے سے تھوڑا دور کھڑے دیکھ کر شمیر شاہ نے اسے اپنے لہجے کو بوجھل بناتے ہوئے بے باک سی سرگوشی کی تھی کہ مہروش کا چہرہ ایک دم سے سرخ انگارا ہوا تھا۔ اس نے فوراً سے نفی میں سر ہلایا تھا جب شمیر شاہ نے اسے گھوری سے نوازا۔ آپ میری نرمی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھایا کریں، میں نے کہا ہے ادھر آئیں تو ادھر آئیں، ورنہ اگر میں آپ کے پاس آیا تو آپ کے لیے ہی برا ثابت ہوگا۔ اس کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا جس سے مہروش کے قدموں کو اس کی جانب بڑھا گیا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اس کی طرف بڑھتے اس سے 2 قدموں کے فاصلے پر کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ جو میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں نا، اس کا آپ بہت ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں، اس لیے بس میں آپ کو تھوڑا سا ہی اور ٹائم دے سکتا ہوں۔ اپنے آپ کو تیار کر لیجئے گا مجھے برداشت کرنے کے لیے۔ ایک ہاتھ سے عنایا کو پکڑے وہ دوسرے ہاتھ کو مہروش کی کمر پر رکھ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچتا، اس کے کان میں سرگوشی کرتا اپنے لب اس کے کان کی لو پر رکھ گیا تھا کہ مہروش کا پورا بدن کپکپا کر رہ گیا تھا۔ آنکھیں شرم و حیا کے بوجھل سے جھک کر رہ گئی تھی، دل کی دھڑکنیں سر پر دوڑی تھی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ اپنی شرم و حیا کو وہ غصے میں چھپاتی اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، لیکن مقابلے کی آنکھوں میں چھائی خمار کی سرخی نے اسے ایک لمحے میں نظریں جھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ شاہ کی روشی جان، ابھی میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو آپ مجھے شرم یاد دلائیں، تو یہ الفاظ ابھی بچا کر رکھیں۔ جب شرم والے کام کروں گا تب آپ کو چھپنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی۔ اس کے گال پر لب رکھتے وہ معنی خیزی سے بولا تھا۔ مہروش کو لگا اس کا دل ابھی باہر نکل آئے گا۔ عنایا آنکھیں پھاڑے ان دونوں کی جانب بٹر بٹر دیکھ رہی تھی۔ عنایا دیکھ رہی ہے، پلیز چھوڑیں۔ حلق سے بمشکل ہی الفاظ نکلے تھے جب شمیر شاہ نے بھی اس کے دوسرے گال پر اپنے لب رکھتے اسے اپنے مضبوط حصار سے آزاد کیا تھا کہ مہروش بوتل کے جن کی طرح وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ شمیر شاہ نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے عنایا کی جانب دیکھا جو مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شمیر شاہ نے مسکراہٹ چہرے پر سجائے جھکتے ہوئے اس کی ناک کے ساتھ اپنی ناک رگڑی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔